strengths and disadvantages. ठीक है ना? I one more thing from you, that is the conclusion. ठीक है ना? तो तुम्हें दो strength दो weakness पता है. How will you conclude this question? What conclusion which will you write? I have a session at 5 though. क्या करूँ? साढ़े आठ. ऊपर ही. In conclusion, it could be that bullying is practiced workplace which नहीं. Interviews का वास्ते तुम्हें conclusion देना. You know कि interview is good, you know कि interview is bad. Keeping that mind कि तुम interviews के बारे में क्या conclude करोगे. ये जो question है ये वाला screen के सामने. Okay, what would you conclude about bullying itself? या अब एंड तुम्हें बता दिया कि इंटरव्यू अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो अब क्या बोलोगे तुम कंक्लूजन में? Yes, could be beneficial as work. I see. So this is something that students do, ठीक है ना? But your answer is not complete क्योंकि conclusion मतलब होता है कि you're supposed to like finish the argument. Think about this way, like if there are two people involved and तुम conclusion बोल दो कि वो सही था, दूसरा बंदा like सामने से आके बोलेगा नहीं 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 ये सही कैसे, मैं सही हूँ. So the way you want to conclude is to say both perspectives are correct. So you can say ये तुम्हारा जो फिर जो तुमने मुझे लिख के भेजा ना, that's like one portion of the answer. इसके बाद आगे तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि yes, conducting interviews could be beneficial as workers will get a chance to express their feelings, but on the other hand, the interviews could also have a disadvantage as well. सही है, तुमने बोल दिया. अब क्या करना है? So in conclusion, other alternatives should be considered when interviews are not possible, but when it is possible, it should be used to its fullest extent. तो जहाँ इस्तेमाल हो सकता है वहाँ इस्तेमाल करो. We cannot take a side. Nope, you cannot.
All right, so ये हो गया क्या कहते हैं या we have talked about the causes of bullying ठीक है is bullying अच्छा तो बुल आइनरसन की जो स्टडी थी राइट इज होलिस्टिक और रिडक्शनिस्ट इज वेरी वेरी होलिस्टिक क्योंकि इसने बहुत सारी चीजें बताई बुलिंग के बारे में causes stages types individual situational we have argued that causes of bullying individual भी हैं situational भी हैं नेचर नेचर एप्लीकेबल नहीं होगा कल्चर बायस देखते हैं इज बुलिंग अ कल्चर फिनोमेनन वेल नहीं क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय एंडरसन बुलिंग occurs in almost every country ठीक है ना अकॉर्डिंग टू द स्टडी यहाँ तो तुम देख सकते हो नॉर्वे में भी होता है जर्मनी में भी होता है ऑस्ट्रेलिया में भी होता है इंग्लैंड में भी होता है राइट सो क्या कहते हैं बुलिंग इज एवरीवेयर ठीक है ना प्रोडोमिनेटली फाउंड ठीक है ना सो इट्स नॉट अ कल्चरल फिनोमेना ठीक है alright so reactions हो गया individual situation हो गया is it applicable the knowledge that we now have about bullying is it applicable yes companies can be educated to look out for this behavior so that they can monitor bullying okay employees can be educated about different type of bullying so that they can identify कि कौन सा type of bullying उनके साथ किया जा रहा है ठीक है ना companies can also be educated to look out for these factors make sure कि ये सारे के साथ चारों की चारों चीजें सही करें ठीक है to make sure that doesn't they don't promote bullying so this theory is applicable in that regard all right so bullying के बारे में हमने बात कर ली now moving on to क्या कहते हैं ये हमने ये बात कर ली now moving on to the last portion ठीक है ना that is physical environment so two psychological one physical the physical experiment environment that we're going to talk about is the office layout like the office किस तरह बना हुआ है that could impact so एक होता है क्यूबिकल वाले ऑफिस जो तुमने मूवीज के अंदर देखे होंगे कि हर किसी का अलग अलग खाने बने होते हैं जो आई गेस तुम्हारे कॉलेज के टीचर का स्टाफ रूम अगर हर टीचर अलग कमरे में तो क्लोज्ड होता है लेकिन लेट्स सपोज बहुत सारे टीचर एक ही स्टाफ रूम में तो ओपन होता है तो दे वांट टू फाइंड आउट वेदर ओपन ऑफिसेस वर्क बेटर या क्लोज्ड ऑफिसेस वर्क बेटर so that's Oldham and Brass's research physical environment so they ask you कि open plan offices क्या होते हैं open plan office वो होते हैं जहाँ पे दीवारें नहीं होती दरवाजे सेपरेट रूम्स नहीं होते right partitions नहीं होते so that's open all right so background इस experiment के बारे में this is going to be conducted in a newspaper company जो अमेरिका में and this is actually be conducted in their office so it's a field experiment सही है so जो employees होंगे उस कंपनी के obviously research participants होंगे so out of 140 employees 128 people participated big number yes America only generalizable नहीं है और सिचुएशन बताते हैं होता कैसा ये ये जो न्यूज़पेपर कंपनी ने चूज किया है ना ऑलरेडी इनको एक नया ऑफिस में शिफ्ट होना था ऐसा नहीं कि ओल्डहम एंड बैस ने एक कंपनी ढूंढी उनको बोला कि हमारे लिए शिफ्ट कर दो हम एक्सपेरिमेंट करना है द कंपनी दे चूज ऑलरेडी वांटेड टू शिफ्ट फ्रॉम देयर पुराने वाले ऑफिस क्यों क्योंकि पुराने ऑफिस में ये मसले थे रेलवे ट्रैक से बहुत दूर था तो अखबार जो था रेलवे ट्रैक्स तक ले जाना बहुत मुश्किल था ठीक है ना सो हमें एक नया ऑफिस चाहिए जो रेलवे ट्रैक के करीब है तो जो नया ऑफिस ये लोग खरीदेंगे ना वो ओपन प्लान ऑफिस होगा और जिनका पुराना ऑफिस था जिससे ये बाहर निकल रहे हैं वो क्लोज्ड ऑफिस था so that is going to be the change in environment and Oldham and Brass seeing this opportunity uh, they jumped at the opportunity and said कि हाँ यार ये हमें स्टडी करनी चाहिए कि एम्प्लॉयज के अंदर क्या चेंजेस आते हैं पुराने ऑफिस को पूरे के पूरे लोग छोड़ के नहीं गए कुछ लोग पुराने ऑफिस के अंदर फिर भी काम करते थे प्रेस रूम वाले लोग जो थे ठीक है ना दे स्टिल रिमेन इन द पुराने वाला ऑफिस तो उनके लिए एनवायरनमेंट चेंज नहीं हुआ so that were these were the control group everyone who shifted to the new office were the experimental group ठीक है that's what you have to know so at the majority at the start ठीक है ना when everyone went to the new office हर कोई कहने लगा कि भाई पुराना ऑफिस बेकार था नया ऑफिस बहुत अच्छा है शुरू शुरू में Right.
But will that remain? Yeah, will people's opinion change? We will find that out. So this is where the experiment comes in. Their experiment is divided into three phases. Okay. T1, T2, T3 is time one, time two, time three. ठीक है. So ये तीन दफा डेटा गैदर करते हैं. पहली दफा डेटा कब गैदर करते हैं? जब सब के सब पुराना ऑफिस में होते हैं. सही है. जब सब के सब पुराना ऑफिस में होते हैं. एंड दिस वाज डन, क्या कहते हैं, यू कैन से इन द 8 वीक, 8 वीक में, 8वें हफ्ते में. ठीक है. सो जब सब पुराने ऑफिस में होते हैं, ठीक है ना, इन्होंने सबका डेटा कलेक्ट किया था. टाइम टू, 9th वीक. 9th वीक वो होता है जब कुछ लोग नए ऑफिस में जाते हैं. सही है. एंड टाइम थ्री इज पुरान नए ऑफिस में जाने के क्या कहते हैं, 18 वीक बाद क्या डेटा आता है. सो दैट्स हाउ दे डिड इट. ठीक है ना. इफ यू वांट मोर क्लियर पिक्चर ऑफ इट, ठीक है ना, दिस इज इट. बिफोर गोइंग टू द न्यू ऑफिस, after going to a new office, 18 weeks after going to a new office. ठीक है. So you have to remember कि ये तीन दफा इनका डेटा गैदर कर किया गया था. Now there were three different groups for this study. तुम्हें पता है कि कंट्रोल ग्रुप कौन है? कंट्रोल ग्रुप आर द पीपल हु आर प्रेस रूम वाले लोग जो पुराने ऑफिस के अंदर रहते हैं, नए ऑफिस के अंदर नहीं जाते. ठीक है. सो देयर गोना बी द कंट्रोल ग्रुप. ठीक है. और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन से होते हैं? Experimental group are those people, ठीक है ना, who came from the पुराना office and went to the new office. सही है. तो इनके लिए scenario change हो गया था. So these are the experimental group. Quasi experimental group क्या होता है? Here's the thing. The Oldham and Brass argued कि you know what? We want to make sure 100% कि if people's satisfaction या जो भी changes, जो भी impact आता है ना, they want to make sure कि यार office का layout change होने की वजह से है. दे हैड टू मेक श्योर कि यार कोई एडिशनल फैक्टर ना आ जाए हॉट ऑन अफेक्ट की तरह, जिसकी वजह से लोगों का जो बिहेवियर है किसी और चीज की वजह से चेंज हो. दे हैड टू मेक श्योर कि लोगों का बिहेवियर ऑफिस चेंज होने की वजह से आता. सो हाउ डिड दे डू दैट? इनको एक सस्पेशन था ओरेन बैस को. दे थॉट कि यार अगर हमने किसी लोगों के पुराने ऑफिस के बारे में ओपिनियन दिया और फिर नए ऑफिस के बारे में ओपिनियन दिया, क्या पता लोग पुराने ऑफिस के ओपिनियन को याद रख के नया ऑफिस के ओपिनियन को इन चेंज कर दें. एज इन अगर तुम्हें याद होगा कि तुमने पुराना ऑफिस के बारे में क्या बोला था, सो दैट आंसर अबाउट द पुराना ऑफिस में इम्पैक्ट योर आंसर अबाउट द न्यू ऑफिस. राइट, कुड बी. सो इनको ये डर था. तो व्हाट दे डिड इज इन्होंने ना कुछ लोगों से ना पुराने ऑफिस के बारे में कुछ पूछा ही नहीं. सही है. वो कैसे? कॉजा एक्सपेरिमेंट ग्रुप वाले. कॉजा एक्सपेरिमेंट वाले ग्रुप कौन से थे? ये वो लोग थे, ठीक है ना, द कॉज एक्सपेरिमेंट ग्रुप, ये वो वाला. ठीक है. जो who went to the new office, right? ठीक है ना. But they were never asked about the old office. ठीक है. So this is the causa experiment group. So they're both experiment groups. एक experiment group है, एक causa experiment group है. ठीक है ना. एक से पुराने ऑफिस के बारे में पूछते हैं, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप से पुराने ऑफिस के बारे में पूछते हैं, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप से पुराने ऑफिस के बारे में नहीं पूछते. जिससे नहीं पूछते उसको कॉजा एक्सपेरिमेंट वाले ग्रुप बोलते हैं. सही है. सो यू यू अंडरस्टैंड दैट मच, राइट? ये समझ में आ गया. All right, so let's see how the study was carried out overall. पुराने ऑफिस के बारे में फिर किससे पूछा? कंट्रोल ग्रुप से पूछा और एक्सपेरिमेंट ग्रुप से पूछा. सही है. नया ऑफिस के बारे में किससे पूछा? द डे दे वेंट टू द न्यू ऑफिस किस किस से सवाल हुए? पुराने कंट्रोल ग्रुप से सवाल हुए. ठीक है ना. वो अभी तक पुराने ऑफिस में, नया ऑफिस पे नहीं आए, तो बेसिकली दे स्टिल इन द पुराना ऑफिस. लेकिन उनसे भी पूछा गया कि तुम्हारा पुराना ऑफिस कैसा लगा है. नया ऑफिस के बारे में एक्सपेरिमेंट ग्रुप वाले से पूछा. ठीक है ना.
जिनसे पुराने ऑफिस के बारे में पूछ भी चुके थे, एंड कॉजा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वालों से भी नया ऑफिस के बारे में पूछा। ठीक है, खत्म। 18 हफ्ते हो गए नया ऑफिस के अंदर। अब सवाल किससे दोबारा किससे पूछा? कॉजा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है ना, जिससे पुराने ऑफिस के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिससे पुराने ऑफिस के बारे में पूछा गया था। एंड ऑल्सो मूव होने के 18 हफ्ते बाद जो बेचारे प्रेस रूम वाले थे वो फिर भी पुराने ऑफिस में थे, तो इनसे इनके पुराने ऑफिस के बारे में पूछ रहे थे कि भाई वहां पे अभी तक कैसा महसूस हो रहा है। सही ना, एंड दे बेसिकली कैन कंपेयर के इनकी, ये जो लोग हैं जो बाकायदा अभी तक पुराने ऑफिस में, इनकी सेटिस्फैक्शन क्या होती है, ये लोग जो हैं पुराने ऑफिस से नया ऑफिस में इनकी बाकायदा क्या सेटिस्फैक्शन लेवल होती है, और ये जो लोग हैं जो पुराना ऑफिस से नया ऑफिस में है लेकिन इनसे पुराने ऑफिस के बारे में कुछ नहीं पूछा, इनकी क्या सेटिस्फैक्शन होती है। So that's they want to find out. So they basically check the work satisfaction, ठीक है ना, motivation towards work and interpersonal satisfaction, ठीक है, so that they check this out. They use a standardized questionnaire, ठीक है ना, जो close ended questionnaires थे, हर कोई questionnaire close ended था, तो it gave you quantitative data। किस तरह? क्योंकि 7 point लाइकर्स के इस्तेमाल हुआ था इस क्वेश्चनर में भी, इस क्वेश्चनर में भी, इस क्वेश्चनर में भी, ठीक है ना। सो तुम्हें 3 क्वेश्चनर के नाम याद नहीं रखने, तुम्हें बस पता लगना चाहिए कि क्वेश्चनर किस चीज़ के बारे में था। इसके बारे में था, इसके बारे में था, इससे बारे में था, एंड ये तीनों क्वेश्चनर्स तीनों ग्रुप को दिए गए थे, ठीक है ना। सो इट वाज अ स्टैंडर्डाइज्ड एक्सपेरिमेंट, इज कंप्लीटली रेप्लिकेबल। ऑलराइट, सो व्हाट वाज द रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ 18 वीक, राइट, ये जो 18 वीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले लोग, ठीक है ना, जिन्होंने कहा था ना कि नया ऑफिस में जाने के दिन कि हाँ यार पुराना ऑफिस बेकार था, 18 हफ्ते बाद पुराना ऑफिस, नया ऑफिस में 18 हफ्ते बाद इनको पुराना नया ऑफिस पसंद आना खत्म हो गया। सो बेसिकली देयर सेटिस्फैक्शन, देयर मोटिवेशन, देयर रिलेशनशिप, ठीक है ना, एंड देयर सुपरवाइजर के साथ फीडबैक जो होता है वो सब बेकार चला गया। सो टर्न्स आउट के शुरू शुरू में उनको नया ऑफिस अच्छा लग रहा था, लेकिन 18 हफ्ते बाद उनको नया ऑफिस बहुत खराब लगने लगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। नाउ द थिंग इज, अगर ये कॉजा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ भी होता है तो उसका ये मतलब है कि पुराना ऑफिस के बारे में सवाल पूछने का कोई इम्पैक्ट एक्सपेरिमेंट ग्रुप के अंदर नहीं आया। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट कॉजा एक्सपेरिमेंट ग्रुप पुराना सॉरी कॉजा एक्सपेरिमेंट ग्रुप नया ऑफिस से खुश रहता है, इफ देर हैप्पी विद द न्यू ऑफिस इवन आफ्टर 18 वीक्स, इसका ये मतलब है कि एक्सपेरिमेंट ग्रुप का जो रिजल्ट का डिक्लाइन इसलिए आया होगा क्योंकि इनसे पुराने ऑफिस के बारे में आपने पहले पूछ चुके होगे। तो लेट्स फाइंड इट आउट कि कॉजा एक्सपेरिमेंट वाले लोग का भी सेटिस्फैक्शन वगैरह सब गिर गया था नया ऑफिस के अंदर या उनका बढ़ गया था। टर्न्स आउट के कॉजा एक्सपेरिमेंट वाले लोग, ठीक है ना, एंड एक्सपेरिमेंट वाले लोग, इनका रिजल्ट जो था, क्या कहते हैं, टाइम 3 और टाइम 2 के अंदर सेम आया था, ठीक है ना। Initially both of these groups, Koza experimental and experimental group, were happy with the new office, and after 18 weeks they both were not happy with the new office. तो इसका ये मतलब है कि there were no chance of demand characteristics. Asking about the old office did not influence the participants perception about the new office. तो कोई demand characteristics नहीं आई, and it's 100% not guaranteed that लोगों का जो satisfaction था it declined because 100% because of the office change, not because of any other factor. So, why did people not like the new office? उस क्या था नया ऑफिस के बारे में जो पसंद नहीं आया? Why did don't people like open offices? Why people like doors? Privacy issues number one. लोग और दूसरे लोग कहते हैं कि यार हर कोई आके हमसे बात करना शुरू करता है जस्ट बिकॉज वेयर इन फ्रंट ऑफ देम, तो हम काम सही से नहीं कर पाते, हम फोकस नहीं कर पाते क्योंकि ओपन है, हर कोई आके हमसे बात करना शुरू करता है। नंबर 2, अगर किसी से कोई प्राइवेट में बात करनी होगी ना तो कोई मौका नहीं होता क्योंकि कोई दीवार नहीं है, तो हमें फिर मीटिंग रूम, पूरे कंपनी के अंदर सिर्फ एक ही मीटिंग रूम है और हर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा होता है, तो हमें टाइम ही नहीं मिलता मीटिंग रूम में जाके प्राइवेट बात करने के लिए, तो जिसकी वजह से मुझे नया ऑफिस पसंद नहीं है। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट make you hate the open plan office, and people then actually prefer closed plan office according to results. So is it individual situational? Completely situational. तुमने लोग का ऑफिस चेंज कर दिया, उनकी सेटिस्फैक्शन खत्म हो गई, सही है, सो सिचुएशन है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है ना, इज हाईली एक्सटर्नली वैलिड क्योंकि ये फील्ड एक्सपेरिमेंट था, एक असल ऑफिस में किया गया। इट इज हाईली रेप्लिकेबल एज ए सेट के स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर थे जो हर ग्रुप को दिए गए थे,
Is it generalizable? Yes, no, depends. American company थी, न्यूज़पेपर वाले दूसरे कल्चर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, but 140 people may be generalizable, ठीक है ना? Demand characteristics आ सकते थे, but they made sure नहीं आए, so this is a very strong point of the research as well. So this is the summary, ठीक है ना? Newspaper company जो ठीक है ना, went from the old office जो open था to a new office that is closed. तीन ग्रुप बनाया गया, ठीक है ना? 5 people in the control group who was the press room वाले जो till the end of the experiment they stayed in the previous office. 26 people were in the quasi experiment and 76 people were in the experiment group, ठीक है ना? quasi experiment वाले से टाइम वन का जब डेटा कलेक्ट नहीं किया गया था, एक्सपेरिमेंट ग्रुप से टाइम वन टाइम टू टाइम थ्री का डेटा कलेक्ट किया गया था. At the end of the experiment, both the quasi experimental and the experiment group showed decline in satisfaction, interpersonal satisfaction, supervisor feedback, and human relationship. And they said that it was because of lack of privacy. So yeah, so that's gonna be your summary for the study. इसमें कोई मसला? All right. So we have discussed physiological, we have discussed psychological, and another psychological thing. Individual situational, as I said, case 100% individual. ठीक है ना? कल्चर वाइज आ सकता है क्योंकि अमेरिका में की गई थी, ठीक है ना? कलेक्टिविस्ट कल्चर जहाँ पे लोग लाइक ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, वहाँ पे शायद लोग बकायदा ओपन प्लान ऑफिस को क्या पता पसंद करें, क्योंकि अमेरिका के अंदर इंडिविजुअल से कल्चर दे प्रेफर देयर ओन प्राइवेसी. कल्चर्स लाइक दीज जहाँ पे लोग को हल्ला गुल्ला पसंद है, वहाँ पे शायद रिजल्ट्स ऑपोजिट आ सकते हैं, तो कुड बी कल्चर बायस इन दैट रिगार्ड. भाल ये हो गया. इज इट यूजफुल? यस. This results, yeah, studies हम ये extract कर सकते हैं कि if your work involves privacy, don't use open plan offices. But if your work depends upon people talking to each other, एक दूसरे के साथ coordinate करना, then use open plan offices. So yeah, is it reductionist holistic? Well, it is holistic क्योंकि बहुत सारे factors इन्होंने investigate किए थे ये तीनों, ठीक है ना? So yeah, it is holistic. So इस पूरे सेक्शन का नाम है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वर्क कंडीशंस, ठीक है ना? इसके अंदर हॉथॉर्न इफेक्ट है, बुलिंग है, और ओपन एंड क्लोज एंड ऑफिस है. इस पूरे सेक्शन का जो इवैल्यूएशन तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा. ऑलराइट, सो दैट्स द फर्स्ट सेक्शन कंक्लूडेड, ठीक है ना? नाउ वी कम ऑन टू द सेकंड सेक्शन जो शिफ्ट है. यू नो दैट पीपल वर्क इन शिफ्ट, ठीक है ना? तो there's basically या प्राइमरीली कंपनी के अंदर तीन शिफ्ट होते हैं जो 24 घंटे चलते हैं. वो कौन सी कंपनीज होती हैं? पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, एयरलाइन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है ना, जो एयरलाइन चलाते हैं. और क्या होता है? न्यूज़ न्यूज़ डिपार्टमेंट की खबर कहीं भी से भी आ सकती है, राइट? सो कॉल सेंटर्स एज वेल जो 24 घंटे काम करते हैं. फास्ट फूड रेस्टोरेंट जो 24 आवर्स ओपन होते हैं, उनके अंदर पर्टिकुलर डे शिफ्ट, आफ्टरनून एंड नाइट शिफ्ट होती है, राइट? सो वहाँ ज़्यादातर डे शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट होती है, बट कंपनी दैट रन 24 आवर्स वहाँ पे नाइट शिफ्ट भी होती है. सो सो नाउ यू हैव टू नो दैट एक होता है परमानेंट जॉब जहाँ पे योर शिफ्ट इज 100% कंफर्म्ड, राइट? सुना होगा भाई या बहन से, अब्बू से कि मेरी परमानेंट जॉब है. इसका ही मतलब है क्या? शिफ्ट कंफर्म है. एक होता है टेम्पोररी जॉब या टेम्पोरल वर्क जहाँ पे आपकी शिफ्ट टाइमिंग कंफर्म नहीं है, ठीक है ना? आपको किसी भी शिफ्ट में कभी भी ला सकता है, ठीक है? दैट्स टेम्पोरल वर्क. सो देयर इज अ रिसर्च बाय फेजेंट, ठीक है ना, who found there's two way that shift work takes place, ठीक है ना? एक रैपिड रोटेशन, एक स्लो रोटेशन है. Alright. So he argues कि रैपिड रोटेशन के अंदर जो है ना, तुम्हारे शिफ्ट टाइमिंग्स तेजी से चेंज होंगे, एंड स्लो रोटेशन के अंदर तुम्हारी शिफ्ट की टाइमिंग्स चेंज होगी लेकिन इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते. मुझे 1 मिनट देना, दरवाजे पर कोई यार, देयर इज नो वन एट होम, मैं देख के आऊँ कौन है.
All right. So, yeah. So ideally, ठीक है ना, you don't want to end up in any of these. You don't want to be under rapid rotation. You don't want to be under slow rotation. You want to be someone who has a permanent shift. ठीक है. Why? क्योंकि देखो, there's something called in your body called the circadian rhythm. Circadian rhythm, if you want an easier explanation, is your biological clock. If तुम्हारी शिफ्ट हमेशा हर दिन चेंज होगी, मतलब कभी नाइट है, कभी डे है, कभी रात है, योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट, राइट? बट इफ योर शिफ्ट कीप्स चेंजिंग स्लोली, तो तुम्हारी बॉडी को टाइम मिलता है कि थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाए. But ideally, you don't want to change your body clock. You want to keep it as it is naturally. So you want a permanent shift. But let's suppose कि अगर चेंज करना होगा तो क्या करें? So pheasant, ठीक है ना, ने आइडिया दिया था कि आप दो तरीके से लोकल शिफ्ट चेंज कर सकते हैं. स्लो रोटेशन क्या होता है? स्लो रोटेशन के अंदर आपके एक हफ्ता डे शिफ्ट होता है, फिर अगले हफ्ते नाइट शिफ्ट होता है, फिर अगले हफ्ते आफ्टरनून शिफ्ट होता है. सो इट चेंजेस ऑन अ वीकली बेसिस, लाइक डेली चेंज नहीं होता. साउंड्स फाइन. रैपिड रोटेशन थोड़ा बहुत हेक्टिक होता है. रैपिड रोटेशन के अंदर there's two patterns: metropolitan and continental. मेट्रोपॉलिटन क्या कहता है? दो दिन दो दिन मॉर्निंग, दो दिन आफ्टरनून, दो दिन नाइट, दो दिन ऑफ. फिर दो दिन मॉर्निंग, दो दिन नून, दो दिन नाइट, फिर दो दिन ऑफ. सही ना? सो लाइक टू टू करके चलता है. दो रात, दो दोपहर, दो रात नाइट एंड 2 days ऑफ. दैट्स मेट्रोपॉलिटन. कॉन्टिनेंटल इज अ बिट डिफरेंट. कॉन्टिनेंट कहता है दो दिन मॉर्निंग, दो दिन दोपहर, 3 दिन रात, दो दिन ऑफ. फिर दो दिन मॉर्निंग, 3 दिन दोपहर, फिर दो दिन रात, फिर 3 दिन ऑफ, राइट? इट्स अ बिट वियर्ड, ठीक है ना? But all you have to know in this कि pheasant 1991 ने दो approaches दिए थे to change shift. One is known as rapid rotation, the other is slow rotation. Slow rotation का तुम्हें brief description लिख देना, जहाँ पे बंदों की शिफ्ट जो है वीकली बेसिस पे नहीं होती है. रैपिड रोटेशन का तुम्हें बता देना कि बंदे की शिफ्ट जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होती है. There's two way of doing it: metropolitan and continental. You're not supposed to remember कि 2 3 1 2, ये याद नहीं करना. As shown this. So they asked what is slow rotation theory, ठीक है ना? तुमने बोलना कि you know what is a shift change, जहाँ पे बंदे की जो शिफ्ट है थोड़ा आहिस्ता से चेंज होता है, वीकली बेसिस पे चेंज होता है. एंड तुम एग्जांपल दे दोगी, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल वन वन वीक डे, वन वीक नाइट, या कोई भी एग्जांपल. लेकिन द मेन थिंग इज कि तुम्हें वीक्स इंक्लूड करने हैं, ठीक है? They can ask the same for rapid rotation as well. इन्होंने अभी तक नहीं पूछा. So that's it. That's Pheasant's word. He just needs to tell you कि तुम लोग को rapid rotation और slow rotation किस तरह डाल सकते हो. That's it. There's nothing more to it. There's no experiment. So let's talk about his theory. Is it applicable? Yes. ठीक है, it is applicable. Pheasant gives you a pattern, yeah, gives you a method to shift your employees. अगर स्लो रोटेशन की तरफ जाना है, यू कैन डू इट वीकली. अगर तुम ऐसे कंपनी हो जहाँ पे रैपिड रोटेशन की तरफ जा सकते हो, तो यू कैन यूज दिस, यू कैन यूज दिस. तो इट इज एप्लीकेबल इन कंपनीज, ठीक है ना, जो 24 आवर्स ओपन होते हैं एंड दे वांट टू रोटेट एम्प्लॉइज. सो इट्स एप्लीकेबल. ऑलराइट. Is it individual situational? Well, it's completely situational, as in whatever rotation theory you are going to put under, उतना तुम्हारा circadian rhythm affect होगा. तो that's completely a situational variable, ठीक है ना? उसके अलावा is it reductionist? Well, नहीं, ठीक है ना? क्योंकि he has given multiple तरीके to क्या कहते हैं, change your shift. दो rapid and one slow. So it has a bunch of variety in that regard. सिर्फ एक तरीका उसने नहीं दिया हुआ. अपार्ट फ्रॉम द और कौन से लगा सकते हैं? यहाँ पे नेचर नेचर नहीं रहेगा, ठीक है ना? यहाँ पे डिटरमिनिस्टिक फ्री विल नहीं रहेगा. यहाँ पे कल्चर बायस नहीं रहेगा. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ नहीं रहेगा, राइट? दैट्स द फुल एक्सटेंट यू कैन गो इनटू वैल्यूएशन यहाँ पे, क्योंकि और पॉइंट्स नहीं लग सकते. Alright, so now you know that we can arrange people in work. लेकिन क्या शिफ्ट से वर्क्स को लोग शिफ्ट लोगों की शिफ्ट में काम करवाना क्या गलत कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? यस. एक तो बताया था कि सर्काडियन सर्काडियन रिदम तो अफेक्ट होता है कि नहीं होता. नर्सन गोज वन मोर स्टेप फर्दर. ही वांट्स टू फाइंड आउट कि शिफ्ट वर्क जो होते हैं
उनके हेल्थ वाइज ये छह एस्पेक्ट किस तरह, छह एरियाज ऑफ हेल्थ किस तरह इम्पैक्ट होते हैं. Do you die more if you have shift work? Do you develop cancer more? तुम्हारा पेट खराब होगा, तुम्हारी डायबिटीज होगा, will you have heart issues, or will you have difficulty in pregnancy if you work in shift? ठीक है. So he wants to find that out. So he does two studies. एक study UK में करता है, एक study Denmark में करता है, and both studies have similar finding. He concludes that अगर तुम shift work में काम करोगे ना, तो तुम्हारे लाइक तुम मरोगे तो नहीं, इतना 100% है तुम्हारा. यू नो व्हाट, यू डोंट डाई, मोर्टेलिटी रेट खत्म नहीं होती. तुम्हें कैंसर के भी चांसेस कोई कोई लिंक नहीं है. तुम शिफ्ट में करो, तुम कैंसर ना शिफ्ट में करो, कैंसर तुम्हें होगा नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता. ये कहता है कि यस, 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 अगर तुम शिफ्ट में काम कर सके तो देर आर चांसेस कि तुम्हारे साथ पेट के ज्यादा मसले होंगे, छाले बन सकते हैं पेट में ज्यादातर अगर शिफ्ट में अंदर काम करोगे. सो इट्स बेटर यू वर्क इन डे टाइम. डायबिटीज के हवाले से सम स्टडी सेज दैट यू नो व्हाट शिफ्ट वर्क को ज्यादा शुगर हो सकता है. सम सेज कि देयर इज नो कनेक्शन इन डायबिटीज एंड शिफ्ट वर्क, सो इट्स अ मिक्स्ड रिजल्ट. yes 100% sorry 40% there's more chances कि अगर तुम शिफ्ट वाले इंसान हो तो हार्ट डिजीज 40% ज्यादा हो सकता है. people who work in shift works, औरतें who work in shift work, chances है कि if they're pregnant shift work केस उनको miscarriage हो जाएगा, या उनको miscarriage नहीं होता, and if they give birth successfully, chances are कि उनका जो baby होगा वो premature पैदा होगा, just because of shift work. So this goes on to conclude that yes, shift work does have negative health effect, particular to pregnancy, heart disease, and gastrointestinal disease. So why? Now shift work में ऐसा क्या है? Why is shift work bad? Nursen gives you this diagram. He says कि yes, we know कि shift work जो है disease की तरफ जाता है. We know that, right? Shift work disease. But नर्सन कहते हैं इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. कहते हैं शिफ्ट वर्क, जिस फॉर एग्जांपल जिस अगर आप रात के शिफ्ट में काम करते हो ना, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं which make you have diseases most likely. फॉर एग्जांपल रात में तुम काम करने जाओगे, राइट, दुकानें बंद होती हैं, आप खाना सही से नहीं खा सकते इफ यू आर हंग्री. या तो तुम घर से खाना बना के जाओगे, या तुम ज्यादातर वेंडिंग मशीन से चिप्स निकाल के खाओगे, तो तुम्हारी डाइट खराब हो जाएगी रात खाने से. दूसरी बात है कि आप अगर रात को काम करोगे तो ऑब्वियसली दिन के वक्त सोगे तो आपको सनलाइट नहीं मिलेगी आपके जिस्म को, राइट. हो सकता है कि जब आप रात को काम करोगे ना तो आपको ज्यादातर डर लगेगा, खासतौर पे कराची के अंदर अगर आप तुम रात को अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो यू आर गोना एक्सपीरियंस स्ट्रेस ज्यादातर while you travel. That's going to affect you. If you work in night, you will sleep during the day, so you will miss out on social interactions. That's going to affect you. If you work during क्या कहते हैं नाइट टाइम, ठीक है ना, तुम्हारी शिफ्ट एकदम चेंज कर दी गया है तो तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी. दैट्स गोना हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. सो शिफ्ट वर्क इज नॉट बैड खुद से. शिफ्ट वर्क की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से तुम्हें डिजीज होता है. सो शिफ्ट वर्क क्या कहते हैं connects to many different factors such as diet issues, stress, lack of socialization, paranoia, जिसकी वजह से अल्टीमेटली तुम्हें डिजीज होता है. So that's why shift work is bad for you. ठीक है ना, अगर रात में खाना मिल रहा होता तुम्हें, रात में भी धूप निकली होती, रात में भी तुम्हें लोग मिलते सोशलाइज करने में, so there would have been no problem. लेकिन ऐसा नहीं है. So it is reductionist क्योंकि he looks at multiple factors which causes diseases in shift works. ठीक है ना. Is it culture bias? Well, yes and no. UK and Denmark are Western studies, तो this result may be true in Western cultures. शायद यहाँ पे नहीं होगा. ठीक है. Uh, Also, is it applicable? Yes. इससे हमें पता चलता है कि we should not assign shift work to pregnant women. We should not assign shift work to people who are going through heart diseases. Uh, so it gives us some usefulness in this study. ठीक है ना? So yeah, that's it regarding Natsan. So we're gonna stop here and we're gonna progress further in the next class. Is there anything you want to ask? जो भी आज हमने डिस्कस किया.
All right, please make sure that you send me your pending assignment. See. All right, here I'm gonna sign off. Office.